ملک کی 5 ریاستوں میں اسمبلی انتخابات کا بگل بج گیا ہے، جس کے ساتھ ہی سیاسی ماحول گرم ہو چکا ہے۔ ان انتخابات کو عام انتخابات سے قبل کا سیمی فائنل قرار دیا جا رہا ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ انتخابات جو عام انتخابات سے قبل ہونے والے آخری انتخابات ہیں، اس کے ذریعے ملک کا مزاج سمجھا جا سکتا ہے۔ Friends, as you are aware, we have gathered here today to declare the schedule for the elections to the legislative assemblies of Mizoram, Chhattisgarh, Rajasthan, Madhya Pradesh and Telangana. And we have gathered here today after a significant hiatus of 6 months. We met last. And as we stand on the cusp of elections in these states, it is worth noting that these polls hold a unique significance. مدھیہ پردیش، راجستھان، چھتیس گڑھ، تلنگانہ اور میزورم میں ہونے والے اسمبلی انتخابات کے اعلان سے قبل ہی ان ریاستوں میں سیاسی جماعتیں ذہنی طور پر انتخابات کے لیے تیاریاں کر چکی تھیں۔ اب اس میں شدت پیدا ہو چکی ہے۔ اس وقت تلنگانہ میں BRS، مدھیہ پردیش میں BJP، راجستھان اور چھتیس گڑھ میں کانگریس اور میزورم میں میزو نیشنل فرنٹ اقتدار میں ہے۔ جہاں BJP اور کانگریس اپنی اپنی ریاستوں میں اقتدار برقرار رکھتے ہوئے دوسری ریاستوں پر بھی اقتدار کے منصوبے میں ہیں، وہیں 2 ریاستوں میں قومی جماعتوں کے مقابل علاقائی جماعتوں کا دبدبہ ہے، جن میں تلنگانہ اور میزورم شامل ہیں۔ اس وقت سیاسی جماعتوں کی جانب سے انتخابی اعلانات اور خاص طور پر خواتین کو اپنی جانب راغب کرنے میں کانگریس اور BJP کے درمیان مسابقت دیکھی جا رہی ہے۔ Mahalakshmi, which means rupees 2,500 month financial assistance to women. Gas cylinder at rupees 500. Free travel for women in CSRTC buses across the state to fulfill the aspirations of the people of Telangana, of my brothers and sisters of Telangana. We are announcing 6 guarantees. हमारे युवाओं को निराश होने की जरूरत नहीं है। मेरे नौजवान साथियों, ये मोदी की गारंटी है। आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। भाजपा सरकार आते ही BRS के पापों को मैं एक एक खोल करके रख दूंगा। उनकी सारी बुराइयों को निकाल करके रहूंगा और अभियान के तौर पर करके रहूंगा, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देख रहा हूं कैसे लूट रहे हैं। यहां के युवाओं के लिए केंद्र सरकार ने 2 दिन पहले ही एक सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी की स्थापना की, ऐलान किया। इस विश्वविद्यालय का नाम आदिवासी देवियां समक्का सारक्का के नाम पर रखा जाएगा। سیاسی ماہرین کا ماننا ہے کہ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ حالیہ دنوں میں خواتین کی ووٹنگ انتخابات میں ایکس فیکٹر ثابت ہوئی۔ دیہی علاقوں میں خواتین کی تعداد میں اور بھی اضافہ ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ BJP خواتین کی ریزرویشن کو ایک بڑے کارنامے کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ آج اس ایتہاسک موقع پر نئے संसद भवन में सदन की पहली कार्यवाही के रूप में उस कार्यवाही के अवसर पर देश के इस नए बदलाव का आह्वान किया है और देश की नारी शक्ति के लिए सभी सांसद मिलकर के नए प्रवेश द्वार खोल दें, इसका आरंभ हम इस महत्वपूर्ण निर्णय से करने जा रहे हैं। وہیں دوسری جانب کانگریس نے خواتین کے لیے کئی مفت اسکیمات کا وعدہ کیا ہے۔ ان 5 ریاستوں میں اس وقت کس کی حکومت ہے اور گزشتہ انتخابات میں ان پارٹیوں کا کیا موقف تھا، آئیے جانتے ہیں۔
छत्तीसगढ़ में असम्बली की जुमला 90 नशिस्तें हैं। कांग्रेस पार्टी ने साल 2018 के असम्बली इंतखाबात में यहां से ज़बरदस्त जीत हासिल की थी। कांग्रेस ने 44.4% वोटों के साथ 68 नशिस्तों पर कब्जा किया था, जबकि बीजेपी को सिर्फ 15 नशिस्तें हासिल हुई थीं और बीजेपी को 32.92% वोट हासिल हुए थे। बहुजन समाज पार्टी ने रियासत में 2 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की थी और इसे 3.87% वोट हासिल हुए थे। मध्य प्रदेश में असम्बली की जुमला नशिस्तें 230 हैं। इस वक्त रियासत में शिवराज सिंह चौहान की क़यादत में भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत है। राजस्थान में अशोक गहलोत की क़यादत में कांग्रेस की हुकूमत है। राजस्थान में जुमला 200 असम्बली हलक़े हैं। 2018 के इंतखाबात में कांग्रेस ने 39.3% वोटों के साथ 100 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की थी और बीजेपी को 38.77% वोटों के साथ 73 नशिस्तें हासिल हुई थीं, जबकि बीएसपी ने 6 सीटें जीती थीं। शुमाल मशरक़ी रियासत मिज़ोरम में असम्बली की जुमला 40 नशिस्तें हैं। 5 साल कबल हुए इंतखाबात में मिज़ो नेशनल फ्रंट MNF ने 27 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की थी और कौमी जमातों के मुकाबिल रियासत में बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। इसके मुकाबिल कांग्रेस और बीजेपी जैसी कौमी पार्टियों की कारकर्दगी यहाँ कोई ख़ास नज़र नहीं आई। तश्कील तेलंगाना के बाद से रियासत में BRS इख्तिदार है। गुज़िश्ता इंतखाबात के मुकाबिल पार्टी इस मरतबा न सिर्फ हैट्रिक के मंसूबे में है, बल्कि 100 से ज़ायद नशिस्तों पर कामयाबी का दावा किया जा रहा है। जहां इंतखाबी मुहिम के लिए हिकमत अमली को क़तियत दी जा रही है, वहीं किसी भी जमात ने चीफ मिनिस्टर के उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया है। दरहकीकत कोई भी पार्टी हिकमत अमली के बगैर इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेती। इस हिकमत अमली का एक हिस्सा चीफ मिनिस्टर के चेहरे का ऐलान नहीं करना है। मुल्क की 2 सबसे बड़ी पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस बार बार इस मखमसे का सामना करती हैं कि आया इंतखाबात से पहले चीफ मिनिस्टर के चेहरे का ऐलान किया जाए या नहीं। 2022 से अब तक 11 रियासतों में असम्बली इंतखाबात हो चुके हैं, जहां बीजेपी ने सिर्फ 5 रियासतों में इंतखाबात से पहले चीफ मिनिस्टर का चेहरा पेश किया था, वो भी उन रियासतों में जहां पार्टी इख्तिदार में थी। अगर हम कांग्रेस की रिवायत को देखें तो आमतौर पर ऐसी रियासत में चीफ मिनिस्टर के उम्मीदवार का ऐलान नहीं करती जहां वो इख्तिदार में नहीं है। अब तक 2022 और 23 में 11 असम्बली इंतखाबात हो चुके हैं, जहां कांग्रेस ने इंतखाबात से पहले चीफ मिनिस्टर के उम्मीदवार के तौर पर किसी का नाम पेश नहीं किया। इन जमातों का यह मानना है कि क़ब्ल अज़ वक्त चीफ मिनिस्टर के चेहरे के ऐलान से पार्टी में अंदरूनी इख्तिलाफ़ात पैदा हो सकते हैं, जो कि इंतखाबात से ऐन क़ब्ल ठीक नहीं है। असम्बली इंतखाबात एक ऐसे वक्त में मुनक़िद हो रहे हैं जब पूरे मुल्क में ज़ात पात पर मबनी सर्वे का मुतालबा शिद्दत इख्तियार कर रहा है। राजस्थान में कांग्रेस हुकूमत ने बिहार की तर्ज पर ज़ात पात के सर्वे का हुक्म जारी किया है और मध्य प्रदेश में इसी तरह के सर्वे का वादा किया गया है। अपोजिशन इत्तेहाद में कांग्रेस का क्या हिस्सा होगा और रूल होगा, इसका फ़ैसला भी इन 5 रियासतों के असम्बली इंतखाबात के नताइज पर मुनहसर होगा। अगर कांग्रेस इंतखाबात में बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करती है तो अपोजिशन इत्तेहाद में कांग्रेस की पोजीशन मजबूत होगी। वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक फ़ैसला कर सकेंगे। अगर कांग्रेस कमज़ोर साबित हुई तो इसे नशिस्तों की तकसीम के मामले में समझौता करना पड़ेगा। ये ख्याल किया जाता है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में बीजेपी की पोजीशन मजबूत है, लेकिन कई रियासतों में पार्टी को सख्त चैलेंजेस का सामना है। कर्नाटक में हुए असम्बली इंतखाबात में भी यही रुझान देखने में आया। मिज़ोरम के ताल्लुक़ से ऐसा माना जाता है कि शुमाल मशरक़ी रियासत भी दिल्ली के मिजाज की अक्कासी करता है। इसके अलावा मिज़ोरम में एक ऐसे वक्त में इंतखाबात हो रहे हैं जब मणिपुर में पिछले कुछ महीनों से हालात इंतहाई अबतर हैं। असम्बली इंतखाबात में इसका असर पड़ने के इम्कानात हैं। बीजेपी इन तमाम रियासतों के इंतखाबात में भी मोदी चेहरे पर इंतखाबात में हिस्सा ले रही है। इन 5 रियासतों के इंतखाबात मुल्क के आम इंतखाबात पर असरअंदाज हो सकते हैं। अभी आने वाला वक्त ही बताएगा कि अवाम किन जमातों को इख्तिदार सौंपते हैं और किन जमातों को इख्तिदार से बेदखल करते हैं। 3 दिसंबर को इन सियासी जमातों की किस्मत का फैसला होगा।